So we have discussed the basics, backgrounds, and the basic computations of the curves. Okay. So being an engineer, whenever you are going to design a curve in between two line of communication, either if it is a road project or a pipeline project, canals or railway, any type of two line of communication in which you are going to design a curves. So see, you will have two paths, two line of communication. The change of this point will be given. Yeah, it will be observed practically. The deflection angle or the angle of intersection will be practically measured and observed. Radius of the curve or degree of the curve will be selected or defined according to the requirement. Then you have to find out the tangent lengths, okay, which are the functions of radius and deflection angle. Then from the tangent lengths and the change of the point of intersection, you can locate the position of T1 and T2. Also, you can calculate the length of the curve, length of the long chord, the mid-ordinate, the external ordinate, and the number of full chords and sub chords, etc. ये जो बेसिक कैलकुलेशंस है ये आप लोग कर सकते हैं. Now the question is how practically we will fix different points or different pegs or different stakes through which the curve will pass. कि उसकी हिसाब से हम curve construct कर लें. So for that purposes, yeah, that is called the ranging or setting out of the curve. So we have majorly two methods. One, if we set out or range out the curve based on the linear measurement, okay, only we take the measurement of the distances based on the chain or tape, then this method is called the linear method. And if the different points or different pegs are fixed based on the angular measurement, then it is called the angular method. So today we will just discuss the different types of the linear methods. Again, then we can have different cases that either the center point of the curve will be accessible or not accessible, the long chord will be accessible or not, maybe there will be some abstraction. Okay, so there may be different cases. So based on the different cases, then we have the different methods. So there are four linear methods for setting out or ranging out of a curve, and these methods use the chain और टेप ओनली. ओके, दो इक्विपमेंट, जस्ट सिंपल टेप अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन मेन चीज जो है दैट इज द कैलकुलेशन. आपके माइंड है, कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशंस है, कंप्यूटेशंस है. आप प्रॉपरली कैलकुलेशन कर ले, डेटा निकाल दे, फिर जस्ट टेप के जरिए आपने मेजरमेंट्स लेने होंगे. ठीक है. एंड दीज मेथड आर यूज्ड फॉर द शॉर्ट कर्व्स, रिमेंबर, because in this linear method actually we are taking the we are measuring the distances. So अगर लार्जर कर्व्स हो, जिस तरह मोस्टली मोटरवेज में जो कर्व्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, तो वो फिर रिकमेंडेड नहीं है लीनियर मेथड से. ठीक है. और ये मेथड जो है ये टीडियस भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है. सो इट इज रिकमेंडेड फॉर शॉर्ट कर्व्स और स्मॉल कर्व्स, और उसमें एरर की चांसेस भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द एंगुलर मेथड. So this method will be recommended when the curves are short and when the high degree of accuracies are not required. Okay, and also these methods are recommended when there is there is a clear situation. Okay, mean the intersection points or the long chords, yeah, distances will be easily and clearly measurable. इस तरह ना हो कि बीच में कोई वाटर बॉडी हो या अब्स्ट्रक्शन हो या मेजरमेंट जो है वो आप प्रॉपर ना कर सके, तो फिर ये मेथड जो है ये रिकमेंडेड नहीं है. ठीक है. Now let's discuss that how you will set out or range out or fix the position of different points along the curve on the
based on the linear method. So first we have the offsets are ordinates from long chord. So as from the name it is clear that we will have to take the offsets, we will have to take the distances from the long chord and we will have to fix the points. तो फिर जो जो पॉइंट्स हम लगाएंगे वो एग्जैक्टली करो की ऊपर आएंगे, ठीक है। सो देखिए, सी ऑन द ग्राउंड, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप माइंड में रखें कि हम फील्ड में हैं, हम प्रैक्टिकल में हैं, ग्राउंड पे है, ठीक है। तो ऑन द ग्राउंड यू विल हैव दिस फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं ना। जहाँ पे आपने रोड कंस्ट्रक्ट करना है, सपोज इस लाइन में आप सपोज वायर लगाए, डिफरेंट पिग्स लगाए, चूना डाल दे। सिमिलरली देन वी विल हैव another line of communication. This is BC line. Now in between these two lines we have to design a curve. So as we have discussed in earlier slides, that first you have to fix the position of T1. अब इसको किस तरह करते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस की। T1 और T2 को आप पोजीशन को लोकेट कर लें। यहाँ पे दो पिग्स लगाए, स्टील बार्स या इंसर्ट करते हैं ग्राउंड में, या पिग्स लगाते हैं और इसके साथ टैग्स लगाई कि ये T1 है और ये T2 है। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करो एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ द करो। तो अब ग्राउंड पे ये दो पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखें, ये जो फर्स्ट लीनियर मेथड है दैट इज रिकमेंडेड व्हेन द कॉर्ड इज एक्सेसिबल एंड द सिचुएशन इज क्लियर इन बिटवीन T1 एंड T2, ठीक है। इनके दरमियान अगर सिचुएशन क्लियर हो, विजिबल हो और एक्सेसिबल हो। तो फर्स्ट क्या करें, T1 और T2 पॉइंट्स को लगाएं, ठीक है। इनको इस लाइन को डिफाइन कर ले। अगेन यहाँ पे एक वायर लगा सकते हैं, चूना भी डाल सकते हैं, या डिफरेंट पेग्स भी लगा सकते हैं, जस्ट टू डिफाइन दिस लॉन्ग कॉर्ड। And remember, you must have to do all the calculations, the tangent length, the long chord, the length of the chord, all आप कैलकुलेशन कर लें, ये दो पॉइंट फिक्स कर लें और इनका ये अलाइनमेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पॉइंट्स लगाने हैं कि एग्जैक्टली करो उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। सो वी विल टेक द ऑफसेट्स, या we will take the distances from this long chord. तो इस कार्ड का जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से अगर हम इतने डिस्टेंस पे चले जाएं कि आपके पास ये पॉइंट जो है ये एग्जैक्टली करो की ऊपर आ जाए। सी, ये ई पॉइंट जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, और डी पॉइंट क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑन द करो। तो हमने ई से कितने डिस्टेंस पे जाना होगा, इसको ऑफसेट कहते हैं ना, कि लॉन्ग कॉर्ड के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हम चले जाएं कि हमारे पास एक पॉइंट आ जाए which will be on the curve. So that is the offset at the center of the long chord. इसलिए इसको O0 कहते हैं या O0 कहते हैं, that is the offset at the center point. ठीक है। अब देखिए, हमने ये फाइंड करना है कि ये O0 कितना होगा। तो सी, सपोज दैट इज द ओरिजिन, ये O पॉइंट है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, T1 E and O. So we can write OT1 square is equal to T1E square plus OE square, ठीक है। अब OT1 किसके बराबर है, ये R के बराबर है, which is given, R हमारे पास given है ना, R square is equal to T1E किसके बराबर है, L/2 की, इन स्मॉल l, which is representing the length of the long chord। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 2R sin pi by 2,
So ये T1E जो है that is half of the long chord mean L/2 square. और OE square देखें ये D क्या है, that is the point on the curve. So OD क्या होगा, that will be the radius. मीन D पॉइंट करो पे है ना, तो D से सेंटर तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर होगा. सो OD माइनस DE वी विल गेट OE. ठीक है, देखिए OD माइनस ED ये किसके बराबर होगा, OE के. ठीक है, तो OD क्या है, R स्क्वायर, और ED क्या है, that is actually that offset mean the distance from the midpoint of the we can say that midpoint of the long chord to the point on the curve. ये आ जाएगा. ये इक्वेशन क्लियर हो गया आप लोगों को जी? यस सर क्लियर है. अच्छा, इससे आप देखें वो नॉट निकालें या दी अपसेट एट द मिड पॉइंट, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसको जस्ट जो है सिंप्लीफाई करना है, तो आप लोग अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले एट द एंड यू विल गेट r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस l डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर. अब इसमें क्या है, जस्ट एक रेडियस है विच इज गिवन, और एक जो है लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट O नॉट. सो लॉन्ग कॉर्ड के मिड पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे जाए और यहां पे एक पेग लगाए, तो ये पॉइंट कहां पे होगा, ये करो का एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा. अब हमने इस मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड इससे सम डिस्टेंस पे जाना होगा, और उसके लिए हमने अपसेट फाइंड करना है कि उतने अपसेट पे हम जाए और एक पॉइंट लगाए, तो ये भी करो का एक पॉइंट होगा. अब देखिए ना, अगर मिड पॉइंट से हम x डिस्टेंस पे चले जाए, एनी डिस्टेंस जनरलाइज करते हैं ना, मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाए, तो इस पॉइंट से ये जो सपोज हमारे पास P पॉइंट आ गया, तो P पॉइंट पे हमने कितना अपसेट लेना होगा कि हमारे पास करो का पॉइंट आ जाए. सपोज दैट इज पॉइंट Q, कि Q पॉइंट जो है ये करो की ऊपर आ जाए. तो मिड पॉइंट से टू द लेफ्ट एंड टू द राइट फिर आपने इतने डिस्टेंस पे जाना होगा और वहां से इतना अपसेट लेना होगा, तो आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा दैट विल बी ऑन द कर्व. एंड रिमेंबर द कर्व इज सिमेट्रिकल टू बोथ द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. तो लेफ्ट साइड के लिए आप कैलकुलेशन कर लें, सपोज 5-5 मीटर इंटरवल पे अपसेट फाइंड कर ले, वही अपसेट राइट साइड के लिए भी होंगे मिड पॉइंट से. ठीक है, तो आप देखिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हम फाइंड करते हैं. सी यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रॉ कर दूं, सपोज दैट इज Q डैश, और Q को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दें, तो ये एक ट्राइंगल एज्यूम कर लें, OQQ डैश, OQQ डैश. ठीक है, तो नाउ वी कैन से दैट OQ स्क्वायर will be equal to Q dash square plus Q dash O square. इस तरह आ जाएगा ना, इन OQ square is equal to QQ dash square plus Q dash O square. OQ किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है जी? रेडियस, बिकॉज Q जो है दैट इज द पॉइंट ऑन द कर्व, सो OQ विल बी इक्वल टू R स्क्वायर.
क्यू क्यू डैश किसके बराबर होगा? दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, ये इसके बराबर होगा ना, मीन जितने डिस्टेंस पे आपने अपसेट लेना है। ये एक फिक्स इंटरवल होता है, 5 मीटर है, 7 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर है। तो क्यू क्यू डैश इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें ये क्यू डैश ओवर ओ ये किसके बराबर होगा? इस पॉइंट को समझे, सी ओ डी माइनस, ये ओ डी से अगर ई डी आप माइनस कर लें और फिर उसके साथ ये ओ एक्स प्लस कर लें तो ओ क्यू डैश आ जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गए कि नहीं? ओ डी माइनस ई डी प्लस ई क्यू डैश, तो ये किसके बराबर होगा? ओ क्यू डैश के। इज इट क्लियर? देखिए ओ डी विच इज इक्वल टू आर माइनस ई डी विच इज इक्वल टू ओ नॉट प्लस ई क्यू डैश। ई क्यू डैश किसके बराबर है? ये क्यू एक्स के, अपसेट एट एक्स डिस्टेंस ओ एक्स होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? ये चीज क्लियर हो गया जी? रिस्पॉन्ड करें ना, क्लियर है कि नहीं? जी सर। अच्छा, अब देखिए इससे ओ एक्स निकालें, so OX will be equal to R square minus X square under root minus R या सॉरी प्लस R, प्लस हो जाएगा कि माइनस होगा? नहीं सॉरी, माइनस R एंड प्लस ओ नॉट। तो ये एक जनरल इक्वेशन आ गया कि अगर आप लॉन्ग कॉर्ड के मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जाए तो आपने इतना अपसेट लेना होगा। तो सपोज अगर ये 5 मीटर है ना, तो सारी वैल्यू पुट कर लें, तो मिड पॉइंट से 5 मीटर अगर आप आ जाएं तो कितना अपसेट ले लें, तो उसके लिए एक पॉइंट लगाएं। फिर मिड पॉइंट से 10 मीटर पे जाएं, उसके लिए अपसेट कैलकुलेट कर लें और परपेंडिकुलरली यहां से जाके एक पॉइंट लगाएं। फिर मिड पॉइंट से 15 मीटर पे जाएं, उसका अपसेट कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं। सो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। सिमिलरली ये लेफ्ट साइड के लिए भी सेम वैल्यूज होंगे। 5 मीटर आ जाए और जितना ये अपसेट है उतना अपसेट यहाँ पे ले लें, फिर 10 मीटर पे, फिर 15 मीटर पे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास ग्राउंड के ऊपर। तो उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर लेंगे सो यू विल गेट दी कर्व। समझ आ गए कि नहीं जी? एनी क्वेश्चन? ठीक है, यस सर, क्लियर। सो अगेन देखें, आपके पास जो है ऑन द ग्राउंड सरफेस जस्ट 2 लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस होंगे ना, 2 मेन लाइंस होंगे, फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट। उसके ऊपर जो है आप टेंजेंट पॉइंट लगाए, ठीक है, और उन टेंजेंट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर ले, ठीक है। और जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली ऊपर जाए और एक पेग लगाए, सिंपल, ठीक है। फिर ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से अपने लिए एक कांस्टेंट वैल्यू सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल 5 मीटर है, 10 मीटर है,
सो 5 मीटर अगर मैंने सेलेक्ट कर दी तो 5 मीटर यहाँ पे पुट कर ले तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा ना। तो ई से 5 मीटर लेफ्ट साइड पे आ जाए और जितना अपसेट आ रहा है परपेंडिकुलरली उतना ऊपर जाए, एक पेग लगाए। सिमिलरली राइट साइड पे भी वही 5 मीटर से जो अपसेट आ रहा है उतना ऊपर जाके एक पेग लगाए। फिर यहाँ पे 10 मीटर कर ले तो ई से 10 मीटर लेफ्ट जाके अपसेट ले लें, एक पेग लगाए। सिमिलरली राइट साइड पे 10 मीटर जाके अपसेट ले लें और एक पेग लगाए। फिर 15 मीटर पे कैलकुलेट कर ले अपसेट इस इक्वेशन के जरिए। x जो है दैट इज द डिस्टेंस और बाकी तो आर रेडियस है और ओ नॉट जो है दैट इज द सेंट्रल अपसेट। तो 15 मीटर पे कर ले राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 20 मीटर पे कर ले तो ग्राउंड पे आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। जितना आप ये डिस्टेंस कम लेते हैं ना, 2 मीटर लेते हैं, 3 मीटर, उतने पॉइंट ज्यादा होंगे। जितने पॉइंट ज्यादा है उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो फिर उनकी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लें तो आपके पास वो करो आ जाएगा। तो दैट इज दी वन ऑफ द रेंजिंग मेथड या वन ऑफ द सिटिंग आउट मेथड ऑफ द करो। तो उसमें टोटल क्या होता है, अपने जस्ट मेजरमेंट्स लेने होते हैं ना, टेप जस्ट सिंगल एक टेप के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हो गई। अच्छा, तो ये जो हमने इक्वेशन डिराइव की है दीज आर दी एग्जैक्ट इक्वेशन, आपको एग्जैक्ट थ्योरेटिकल वैल्यूज देते हैं। ठीक है, अगर करो लार्ज साइज का है और उसमें नंबर ऑफ अपसेट्स आप ज्यादा कैलकुलेट करना चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेट इक्वेशन। इन x इज द डिस्टेंस, r जो है दैट इज द रेडियस और l जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। सो at any distance from the midpoint you can calculate the offset. So offsets को कैलकुलेट कर ले डिफरेंट इंटरवल्स पे और फिर लॉन्ग कॉर्ड से परपेंडिकुलरली उतने डिस्टेंसेस पे ऑफसेट लेके पेग्स लगाए एंड वंस यू जॉइन दैट पॉइंट्स यू विल गेट द कर्व। ठीक है, तो सी वर्किंग मेथड क्या होगा, जस्ट डिवाइड द लॉन्ग कॉर्ड इनटू different parts and calculate the offsets at each interval और उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलरली आप इतना डिस्टेंस मेजर करके पॉइंट्स लगाएं सो यू विल गेट द कर्व। सो एक साइड के लिए कर ले, दूसरी साइड के लिए भी वही वैल्यू होंगे बिकॉज सिंपल सर्कुलर कर्व जो होते हैं दैट इज सिमेट्रिकल टू बोथ साइड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। ठीक है, ठीक है, calculate the ordinate at 7.5 meter interval for a circular curve. The length of the long chord is 60 meter and radius is 180 meter. ठीक है, सो अगर लॉन्ग कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है 60 मीटर है, सो मिड पॉइंट से ये 30 मीटर पे आ जाएगा और 7.5 मीटर इंटरवल पे आपने अपसेट फाइंड करना है। सो फर्स्ट अपसेट 7.5 पे होगा मिड से, रिमेंबर सेकंड जो है वो 30 पे होगा, सॉरी 15 पे होगा, थर्ड जो है वो 22.5 पे होगा और लास्ट जो है वो सेंटर पॉइंट से 30 मीटर पे होगा। एंड रिमेंबर इसका अगर आप कैलकुलेट कर ले आपके पास 0 आएगा बिकॉज ये लास्ट पॉइंट है ना, T1 पॉइंट है, तो T1 पॉइंट ये करो का पॉइंट है ना, तो इससे अपसेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखें पहले सेंटर पॉइंट का अपसेट कैलकुलेट कर ले which is equal to r into under root r square minus l by 2 whole square और फिर जो है ये जनरल इक्वेशन यूज कर ले। मीन अपसेट at any distance x is equal to r square minus x square under root और क्या है माइनस आर माइनस और प्लस ओ नॉट। ओ नॉट ऑलरेडी फर्स्ट टाइम आपने कैलकुलेट, या इस तरह भी कर सकते कि ओ नॉट की ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना ओ नॉट की ये वैल्यू फिक्स कर ले, यहाँ पे फुट कर ले और फर्दर लेकर सिंप्लीफाई कर ले, सो यू विल गेट दिस जनरल इक्वेशन। अपसेट एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट
माइनस आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसमें आर रेडियस है, एक्स जो है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, और एल जो है स्मॉल एल दैट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। तो फिर यहाँ पे अगर आप जीरो पुट कर लेना, ये जनरल एक इक्वेशन हो जाए, जीरो पुट कर ले तो आपके पास जो अपसेट आ जाएगा वो मिड पॉइंट पे होगा। फिर यहाँ पे 7.5 पुट कर ले एक्स की जगह, तो आपके पास 7.5 पे अपसेट आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा, 22.5 पे आ जाएगा, और 30 पे यू विल गेट जीरो। एंड द सिमिलर दैट विल बी सिमिलर ऑफसेट्स विल बी टेकन टू द राइट साइड। ठीक है, तो आप देखें सेंटर पॉइंट से 7.5 मीटर आप आ जाए कॉर्ड पे, और 2.34 मीटर ऊपर चले जाए, एक पॉइंट लगाए। फिर सेंटर पॉइंट से 15 मीटर आ जाए और 1.89 मीटर एक पॉइंट लगाए। फिर यहाँ से 22.5 मीटर आ जाए और 1.14 एक पॉइंट लगाए। सिमिलरली राइट साइड पे, तो दीज विल बी द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, तो ये एक मेथड है रेंजिंग का। इज इट क्लियर? क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। मोहम्मद उसामा क्लियर? Yes. वेरीफाई। अच्छा, जी सर। now जो सेकंड मेथड है that is the successive bisection of arcs. देखिए, again on the ground you have one line of communication, you have another line of communication, and that is the intersection point. So first you will have to locate the position of T1 and locate the position of T2. Okay, and once you join these two lines you will get the long chord. Okay, now by successive bisection of arcs, अब देखिए ये जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पाई के बराबर होता है। नाउ मिड पॉइंट ऑफ दिस chord, midpoint of this chord, so the distance from midpoint of this chord to the curve, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मिड ऑर्डिनेट भी कहते हैं ना, और ये किसके बराबर होता है ये बता सकते हैं? वो प्रीवियस क्लास में हमने जो किया था, r into 1 minus cos pi by 2। ठीक है, just you have two line of communication AB and BC, locate the position of T1 and T2, and from the midpoint of the long chord ये y dash distance आप ऊपर जाए और यहाँ पे एक पेग लगाए, तो ये D पॉइंट जो है ये कहां पे होगा, ये कर्व पे होगा ना। ठीक है, अच्छा, नाउ T1 और D को ज्वाइन कर ले, T1 और D को। तो अब सपोज ये आपके पास एक लॉन्ग कॉर्ड आ गया, जिस तरह हमारे पास T1 T2 था। अब ये एंगल हमारे पास कितना है, पाई बाई 2 है। तो अब इसका जो मिड पॉइंट है, उसकी मिड पॉइंट से हम कितना ऊपर जाए कि हमारे पास जो पॉइंट आ जाए वो कर्व की ऊपर हो, सपोज y डबल डैश, ये कितना होगा, एनीवन? जी कितना होगा ये? अगेन वी हैव फर्दरली बाइसेक्टेड इट, सो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली यू कैन जॉइन D विथ T2, और इसका जो मिड पॉइंट है इससे ऊपर हम कितना जाएं, ये
r इंटू 1 माइनस कास पाई बाई 2, इसको y डबल डैश कहते हैं। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा अगेन दैट विल बी द पॉइंट ऑन द करो, ठीक है, सपोज दैट इज k पॉइंट। नाउ T1 और F को ज्वाइन कर ले, T1 और F को, तो इसके मिड पॉइंट से हम कितना ऊपर जाए कि हमारे पास जो पॉइंट आ जाए वो करो की ऊपर हो, सपोज दैट इज y ट्रिपल डैश, वो किसके बराबर होगा? फर्दरली वी हैव बाइसेक्टेड द नेक्स्ट आर्क, so it will be 1 minus cos pi by 8, ठीक है। तो अगर T1F के मिड पॉइंट से आप इतना ऊपर जाए तो जो पॉइंट आएगा वो कर्व के ऊपर होगा। सिमिलरली FD को ज्वाइन कर लें, इनके मिड पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे ऊपर जाए तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो कर्व के ऊपर होगा। सिमिलरली D और K को ज्वाइन कर लें, ये भी उसके बराबर होगा। D और K और K T2 को ज्वाइन कर लें, ये भी होगा। तो यू विल गेट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। फिर देखें T1 को G, F, ये D इन पॉइंट के साथ ज्वाइन कर ले, सो यू विल गेट द कर्व। So successively we have bisected the arcs and you will get the different points which will lies on the curve. Clear शो करना जी? Yes, sir. Posh. Yes, sir. Posh. Again अगर कोई confusion है तो बार बार आप इसको फिर रिवाइज कर सकते हैं because we are recording the lecture. So again if there is any question फिर next class में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड मेथड है that is the offset from the tangents. See we have different methods. हर एक मेथड जो है ये बेस्ड होगा on the location. Suppose if the long chord is accessible and if there is no obstruction and you can take measurements on the long chord, then the first method is acceptable. अगर long chord accessible है, clear है, कोई obstruction नहीं है, उस पे आप measurement ले सकते हैं, तो आप first method कर लें। long chord से आप ordinates ले लेना, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। अच्छा, अगर लॉन्ग कॉर्ड जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, उस पे आप मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, उससे आप ऑफसेट नहीं ले सकते, then you can go for this method to take the offsets from the tangent. See, you have one tangent line, another tangent line, this is the start of the curve और ये जो है ये end of the curve है। तो अब इन टेंजेंट से आपने डिफरेंट अपसेट्स लेने होंगे कि आप पॉइंट्स लगाए और वो पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर आ जाए। तो दीज आर कॉल्ड द अपसेट्स या ऑर्डिनेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स। So in this method the offsets are set out either radially or perpendicularly to the tangents. Again फिर उसकी दो सब मेथड्स है जिस तरह हमने डिस्कस की ना, that you have to take the offsets from the tangent points. So either that offsets will be taken along the radial line if the origin is accessible. That is the question. अगर origin accessible है ना, तो फिर tangent से जो offset आप लेंगे you can take it radially, because कि आप जो डिस्टेंस लेते हैं टेंजेंट से वो किस तरह लेंगे, इस तरह लेंगे, इस तरह लेंगे, कौन से डायरेक्शन में लेंगे। So if the origin is accessible then you can take the offset from the tangent in radial direction, and if the origin is not accessible then you can take the offsets from the tangent perpendicularly. टेंजेंट से हम परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पे जाए कि हमारे पास एक पॉइंट आ जाए और वो कर्व के ऊपर हो, ठीक है। सो द offsets can be taken either radially or perpendicularly to the tangents
if the center is accessible or not accessible. So if the center is accessible, then we can take the offsets from the tangents radially, and if the center is not accessible, then the offsets will be taken perpendicularly. Okay, and the procedure is that how you will take the offsets from the tangent. So see, again, you will have first line of communication and second line of communication. That is the point of intersection. So first, fix the position of first tangent point and second tangent point. Now we have to fix different points for the we can say that for the location of the curve. So by offset from the tangent method, so if you are taking the radial offset, remember if the center is accessible, so from first tangent take any distance. Suppose we have taken x distance. Now from this point in radial direction, मीन सेंटर के तरफ हम कितने डिस्टेंस पे जाए कि हमारे पास जो पॉइंट आ जाए वो करो की ऊपर हो. समझ आ रहा है? करो इस तरफ पास होगा ना. सपोज दैट इज द फर्स्ट पिग. ये जो बिफोर द ब्रेक हमने डिस्कशंस की ना, नंबर ऑफ सब कॉर्ड एंड नंबर ऑफ फुल कॉर्ड्स. सो ये फर्स्ट पिग है, फर्स्ट पिग है ना. तो ये T1 पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा? दैट इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉर्ड. वो या सब लेंथ होगा या फुल लेंथ होगा, जो भी है. ठीक है. या इस तरह भी है कि सपोज यू टेक एनी डिस्टेंस along the tangent, and now we are finding out that from this point, from this E point, how much we have to go radially just to get a point on the curve. ये जो E1 पॉइंट है ना, ये हमारे पास कर्व के ऊपर आ जाए. और ये जो हम जाएंगे टेंजेंट से, ये कौन से डायरेक्शन में होगा? ये रेडियल डायरेक्शन में होगा. That will be in the direction of radius, mean this will be the center point. तो देखें, ये E1O ये किसके बराबर होगा? R के. Now we have a triangle O, T1 and E. यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना. ये एंगल क्या होता है, कोई बता सकते हैं? T1 पे एंगल क्या होता है? 90. बिकॉज ये फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इस पॉइंट पे टेंजेंट होता है ना. और ये E जो है ये रेडियल लाइन है, यहाँ पे ये एंगल 90 नहीं होगा. सो नाउ वी हैव अ ट्राइंगल O E T1. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास. इन दिस वी कैन राइट OE स्क्वायर इज इक्वल टू ET1 स्क्वायर प्लस OT1 स्क्वायर. इस तरह आ जाएगा. OE स्क्वायर इज इक्वल टू ET1 स्क्वायर प्लस OT1 स्क्वायर. सो OE किसके बराबर है जी? जल्दी बताएं. OE R radius E1 R प्लस OX E1 जी. इन OE1 प्लस E1E. तो R प्लस OX होल स्क्वायर इज इक्वल टू ET1 जो है दैट इज द डिस्टेंस व्हिच वी हैव टू टेक ऑन द टेंजेंट. और OT1 किसके बराबर है? ये R के बराबर है. ठीक है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन OX, दैट कितना हमने जाना होगा रेडियली अगर हम टेंजेंट पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाए along the tangent. So OX will be equal to x square plus R square under root minus R.
ठीक है, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है। आप सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाएं और फिर रेडियल डायरेक्शन में इतने डिस्टेंस पे आ जाए, एक पॉइंट लगाएं, वो कर्व के ऊपर होगा, फिर डिस्टेंस चेंज कर लें, दूसरे डिस्टेंस पे जाएं, उसके लिए ओ एक्स कैलकुलेट कर लें और रेडियल डायरेक्शन में आ जाएं और यहां पे एक पॉइंट लगाएं। सिमिलरली फिर डिस्टेंस चेंज कर लें, यहां पे आ जाएं, एक पॉइंट लगाएं। सिमिलरली इस सेकंड टेंजेंट से भी एक्स डिस्टेंस पे जाएं और रेडियल डायरेक्शन में अपसेट ले लें, फिर डिस्टेंस चेंज करके और पॉइंट ले लें और पॉइंट ले लें। तो ये टेंजेंट से जो ऑफसेट्स आप लेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लगाए, यहाँ पे पेग्स लगाए, यहाँ पे स्ट्रेक्स लगाए, तो इसको जब आप ज्वाइन कर लेंगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड कर्व, आपके पास वो रिक्वायर्ड कर्व आ जाएगा। इज इट क्लियर? सर रेडियल लाइन पे जो सर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है TE1 सर, ये किस तरह परपेंडिकुलर है, ये जरा दोबारा एक्सप्लेन करें। क्या चीज, कौन सा डिस्टेंस? सर जो रेडियल लाइन है OE, इस पे सर जो T1E1 ये जो लाइन आता है सर, ये किस तरह परपेंडिकुलर है, जो ट्राइंगल बनता है OE-T1। देखिए, जब आपके पास ये दो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, जिनके दरमियान आपने कर्व प्रोवाइड करना है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जब आप टेंजेंट पॉइंट्स लगाएं तो मतलब क्या होता है कि ये कर्व का स्टार्ट पॉइंट है और ये कर्व का एंड पॉइंट है। यहां से कर्व स्टार्ट होगा और यहाँ पे कर्व खत्म होगा। तो कर्व का फर्स्ट पॉइंट और कर्व का लास्ट पॉइंट, इसको आप कर ले तो ये सेंट्रल एंगल बन जाता है, जिसको हम पाई कहते हैं। अब देखिए, ये कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पे ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो जब ये लाइन इस पॉइंट पे टेंजेंट हो तो इस पॉइंट पे जो रेडियल लाइन होगा उसके साथ ये एंगल कितना होगा जी? 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री है। अब जो है, आप टेंजेंट पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जाए और उस पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर ले, तो आपके पास ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, O T और E, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में क्या है, OE स्क्वायर इज इक्वल टू ET स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। अब OE किसके बराबर है? देखिए, यहां तक रेडियस हो गया और ये अपसेट है, तो रेडियस प्लस अपसेट ये OE के बराबर है, एंड प्लस दिस डिस्टेंस विच इज द x और प्लस दिस इज द रेडियस। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। सो जस्ट मतलब ये है कि ग्राउंड पे आपके पास दो टेंजेंट पॉइंट्स है ना, तो टेंजेंट पॉइंट से किसी भी x डिस्टेंस पे आप जाए along द टेंजेंट और रेडियल डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ले लें, एक पॉइंट लगाए, फिर दूसरा पॉइंट लगाए, फिर तीसरा पॉइंट लगाए, सिमिलरली यहां से भी लगाए, तो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। इनको जब आप ज्वाइन कर लेंगे सो यू विल गेट द कर्व। क्लियर? यस सर, क्लियर। And this is and these are the offsets taken radially from the tangents। ठीक है, इस इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, इससे आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे। नाउ फर्दरली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये OX इज इक्वल टू, देखें अगर इसको हम ओपन कर लेना, इसकी तरह लिख सकते हैं R इंटू 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये जो पोर्शन है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, r इससे कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस r रह जाएगा,
अब ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर होल पावर 1/2, वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है ना। इसको सपोज ओपन कर ले, ये किसके बराबर हो जाएगा फिर, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। देखिए इसको जब आप ओपन कर लेंगे तो आर इनटू मीन ये जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, इसको अगर आप ओपन कर ले वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से यू विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर, ठीक है, प्लस x पावर 4 डिवाइड बाय 8r पावर 4 एंड सो ऑन। इसको इस तरह आप ओपन कर सकते हैं एंड माइनस r, ठीक है। जस्ट ये एक्सप्रेशन जो है ना इसको बाइनोमियली आप ओपन कर ले। नाउ हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर ले, तो ये r इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, r प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2r माइनस r, तो ये r फिर उसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड एट द एंड यू विल जस्ट गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। इसके समझ आ गया कि नहीं? तो ये एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन बन रहा है, अप्रोक्सीमेट फार्मूला बन रहा है कि सपोज टेंजेंट से आप x डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ द रेडियस, उतना अपसेट आप ले लें। तो जितने ज्यादा अपसेट्स आप लेंगे उतनी ज्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, उतना कर्व जो है वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। क्लियर? अच्छा, now sit out a simple circular curve with radius 20 meter and deflection angle 45 degree. So you can find out a number of upsets, radial upsets from the tangent. Just x अगर 0 है तो OX 0 आएगा, बिकॉज वो टेंजेंट पॉइंट्स होगा ना। x को आप 2 मीटर कर ले, उसका अपसेट आ जाएगा 4 मीटर कर ले, 6 मीटर कर ले, मीन अप टू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप जा सकते हैं। समझ आ रहे हैं ना? इफ x इज इक्वल टू BT1, इफ x इज इक्वल टू BT1, तो फिर ये अपसेट जो है ये किसके बराबर होगा, कोई बता सकते हैं जी? एनीवन? एक्सटर्नल ऑर्डिनेट के बराबर होगा। Exactly. If the distance from the tangent is equal to the tangent length, तो ये भी एक रेडियल लाइन है ना, तो ये रेडियल लाइन पे ये जो अपसेट होगा ये एक्सटर्नल ऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो मैक्सिममली आप टेंजेंट पॉइंट से कहां तक जा सकते हैं, बी तक, और आगे भी आप जा सकते हैं ना। यहाँ पे फिर आपके पास ये अपसेट्स आएंगे, तो मैक्सिममली x can be equal to 2 टाइम ऑफ द टेंजेंट लेंथ। ये कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं, एक्सपीरियंस बेस पे होते हैं, बुक्स में अक्सर नहीं होते, तो आप लोग जस्ट जो IQ होता है ना उससे आप अटेंड कर सकते हैं कि मैक्सिममली यू कैन गो इन दिस डायरेक्शन अप टू 2 टाइम ऑफ द टेंजेंट लेंथ। अगर उससे आगे आप जाएंगे तो फिर जो पॉइंट आएगा वो कर्व से बियॉन्ड होगा, which is not our interest। तो आप एक ही टेंजेंट में जा सकते हैं या ये एरिया इस टेंजेंट से कवर कर लें और ये एरिया जो है ये इस टेंजेंट से कवर कर लें। So you will get a number of points and once you join those points you will get the curve। Okay, now we have the upsets which will be taken perpendicularly. So remember, if the center point is not accessible, तो फिर जो अपसेट आप लेंगे
वो कौन से डायरेक्शन में होगा। समझ आ रहा है ना। मीन हमने जो प्रीवियसली जो मेथड डिस्कस की उसमें जो अपसेट्स हम लेते हैं कि टेंजेंट पे हम टेंजेंट से हम एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और फिर जो अपसेट हम लेते हैं वो रेडियल लाइन पे लेते हैं ना। अब अगर ओरिजिन एक्सेसिबल ना हो, आप रेडियल लाइन नहीं ले सकते, तो फिर ये अपसेट आप किस तरह लेंगे, वो आप फिर टेंजेंट से परपेंडिकुलर ले लें, टेंजेंट से परपेंडिकुलर ले लें। ठीक है। सो देखें, you have one line of communication, another line of communication, this is the intersection point, this is the second tangent point, ये जो है ये first tangent है, first tangent point है। अब इससे अगर आप x डिस्टेंस पे जाए तो इस डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली हमने कितना जाना होगा कि हमारे पास एक पॉइंट आ जाए which will be exactly on the curve. So suppose this is point E, this is point E1 और ये हमारा अपसेट हो जाएगा OX। ठीक है। तो T1 से X डिस्टेंस पे जाए और परपेंडिकुलरली इतना चले जाए तो आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा वो पॉइंट कर्व की ऊपर होगा। प्रीवियस मेथड में हम X डिस्टेंस पे जाके रेडियली हम वो अपसेट लेते थे। ठीक है। तो अब देखें ये इस तरह करो है ना, T1 से इस तरह करो आएगा आपके पास। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन, कंफ्यूज ना हो। इस तरह ये करो आ रहे ना। अब देखिए फॉर द डिराइवेशन पर्पसेस, देखिए अगर इस लाइन को हम ज्वाइन कर ले, ये भी सेंटर के साथ होगा, ये ओरिजिन होगा ना। ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहां तक, सपोज दैट इज E2, तो T1 और E2 ये जगह OX के बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा ना, बिकॉज आई हैव ड्रॉन जस्ट एग्जैक्टली अ लाइन पैरेलल टू ET1। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OE1 and E2, in triangle OE1 and E2, OE square, sorry, OE1 square is equal to E1 E2 square plus OE2 square. Is it clear? इन इस ट्राइंगल में OE1 E2 इस ट्राइंगल में OE1 स्क्वायर is equal to E1 E2 square and E2 O square. So OE1 किसके बराबर है, R square के, इन R के बराबर है ना, because E1 is the point on the curve. अच्छा, E1 E2 किसके बराबर है, X के, mean the distance through which we have to go from T1 to E. ठीक है। और OE2 किसके बराबर होगा, OE2 that is equal to OT1 minus T1 E2, mean OT1 mean R minus OX। क्लियर हो गया ये, R minus OX you will get OE2। तो आप इसको जस्ट सॉल्व कर ले फॉर दी OX। सो OX is equal to R square minus X square under root, इसको किस तरह कर सकते हैं, जस्ट जस्ट अबाउट इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लें तो यू विल गेट R
माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इस तरह से। So this is the equation for the upsets which will be taken perpendicularly from the tangent line at a distance x. तो t1 से x डिस्टेंस पे जाए और फिर परपेंडिकुलरली इतना आ जाए, एक पॉइंट लगाए, फिर डिस्टेंस को चेंज करके दूसरा ऑफसेट ले लें, फिर तीसरा ऑफसेट ले लें। सिमिलरली यहां से भी t2 से x डिस्टेंस पे जाए, उसके लिए ऑफसेट फाइंड कर लें और इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली जाए या पॉइंट लगाए, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। एंड वंस यू जॉइन दोस पॉइंट्स यू विल गेट द कर्व। इज इट क्लियर और नॉट? Sir, the center is not accessible, but still we are taking readings from the center like OE. यार these are just for the derivation purposes. ये theoretical है ना, जब आप theory calculations करते, computations करते तो शीट ऑफ पेपर पे तो आप लाइंस ड्रा कर सकते, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड में आपको एक्सेसिबल नहीं है। तो ग्राउंड में आप क्या करेंगे? ये तो मैंने जस्ट आप लोगों की डिराइवेशन के लिए ये लाइंस ड्रा किए। यार आप लोग इतने क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? सी, ग्राउंड में आपके पास क्या है? जस्ट दो लाइंस है ना, दो टेंजेंट लाइंस है, उसमें आपने ओरिजिन के साथ कुछ नहीं करना। ग्राउंड में आपके साथ जस्ट दो लाइंस है ना, ये लाइन है और ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर आपके पास t1 पॉइंट है और इस लाइन के ऊपर आपके पास t2 पॉइंट है। तो t1 से x डिस्टेंस पे जाए और परपेंडिकुलरली इतना आ जाए जितना ये है, फिर t1 से x डिस्टेंस पे जाए और परपेंडिकुलरली इतना आ जाए, फिर t1 से x डिस्टेंस पे जाए और परपेंडिकुलरली इतना आ जाए। सिमिलरली इस पॉइंट से t2 से x डिस्टेंस पे जाके ये अपसेट्स कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ये डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे ना, और जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेंगे सो यू विल गेट द कर्व। इसमें ओरिजिन की कोई जरूरत तो नहीं है ना अभी। ये हो गया कि नहीं? यस सर। सर जब आप फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा कि रिमेंबर दैट यू आर इन द फील्ड। यार ये तो मैंने डेरिवेशन के लिए आपको इक्वेशन कर रहा था ना कि ये इक्वेशन किस तरह डेराइव हो रहा है। ठीक है, आप फील्ड में है तो आप फिर यहाँ पे एज्यूम कर लें। डेरिवेशन के लिए तो हम शीट ऑफ पेपर पे कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकली में द ओरिजिन इज नॉट एक्सेसिबल। सपोज वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई अनवांटेड एरिया है, रेडियल लाइन पे आप मेजरमेंट नहीं ले सकते, तो देन यू विल हैव टू टेक द ऑफसेट परपेंडिकुलरली फ्रॉम द टेंजेंट्स। तो प्रैक्टिकली फील्ड में जब आप मेजरमेंट लेंगे तो फिर उसमें ओरिजिन की जरूरत तो नहीं आ रही ना आपको। क्लियर हो गया अभी? यस सर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, so we have discussed these methods that how you will arrange or set out the curve in the ground. So either the offsets will be taken from the long chord or the points will be fixed based on the successive bisection of arcs, or the points will be fixed on the based on the offsets taken from the tangents either radially आर परपेंडिकुलरली। ठीक है, और इस इक्वेशन को भी फर्दरली अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, मीन इस पोर्शन को ओपन कर लें बाइनोमियल इक्वेशन के बेस पे, देखें आर माइनस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इससे आर कॉमन ले लें तो इनसाइड क्या रह जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। नाउ इस पोर्शन को अगर फर्दरली आप ओपन कर लें बेस्ड ऑन दी बाइनोमियल इक्वेशन तो यू विल गेट, देखिए आर माइनस आर इनटू 1 माइनस, इससे आ जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर प्लस अनदर टर्म माइनस अनदर टर्म एंड सो ऑन। सो हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर लें
और इसको जब आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लें, सो यू विल गेट x स्क्वायर डिवाइड बाई 2r. सो दैट इज द अप्रोक्सीमेट. सो अगर आप देखें ये जो परपेंडिकुलर अपसेट है फ्रॉम द टेंजेंट, इसका परपेंडिकुलर और अगर रेडियल हो, अप्रोक्सीमेट ये सेम ही आ जाते हैं अपसेट्स, लेकिन ये एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है इफ द अपसेट्स इज रेडियल और परपेंडिकुलर. ठीक है. सो इन मेथड से आप डिफरेंट पॉइंट्स लगाए एंड दोस पॉइंट्स विल बी एग्जैक्टली लाइज ऑन द, और फिर उनको आप ज्वाइन कर ले तो आपके पास वो कर्व आ जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड रेंजिंग और दिस इज कॉल्ड सिटिंग आउट ऑफ द कर्व. ठीक है. Now here you can see that suppose if we have a curve of 20 meter radius and the deflection angle is 45 degree, so you can find out the different offsets which will be taken perpendicularly from the tangent. So just take the different values for x, 0, 2 meter, 4 meter, 6 meter and 8 meter. Maximally you can go up to the intersection point from this side, and also maximally you can go from T2 to B on this side. So both tangents say आप perpendicular offsets ले लें with different values of x और वहाँ पे points लगाएं, and those points will be lying on the curve. Clear?